Okay, my dear students, welcome to another edition of Basic Concepts of Organic Chemistry, 11th class. So, in the previous lecture, we had seen the displacement of electrons, and in displacement of electrons, we had seen inductive effect. Inductive effect which induces the polarity in the neighboring carbon-carbon single bond when that bond is having one pair of polar character, one pair of polar character species, that is polar bond. Here we see this carbon and chlorine, they are making a polar covalent bond. Since electronegativity of chlorine is more and carbon is less electronegativity, we see a development of positive fractional and positive negative fractional charge on carbon and chlorine. So fractional positive charge on carbon and fractional negative charge on chlorine. This will induce polarity in the next carbon bonded atom. So we see the polarity here. क्या होगा, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अट्रैक्ट होंगे डेल्टा पॉजिटिव पे और यहाँ पर डेवलप हो जाएगा डबल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली क्या होगा, इंड्यूस का इफेक्ट क्या होगा, अब यहाँ वाले जो कार्बन नंबर 3 के इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 और 3 के बीच की इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगी, डबल डेल्टा पॉजिटिव पे. उससे क्या होगा कि ये थर्ड कार्बन पे ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पोलैरिटी इंड्यूस्ड किसके कारण हो गई है, पोलर बॉन्ड CCl के कारण. सो वी कॉल इट एज इंडक्टिव इफेक्ट और इंड्यूस्ड इफेक्ट. Inductive effect is denoted by I effect and it is of two type, that is what we had seen, the plus I effect and minus I effect. The plus I effect is shown by all the alkyl group. Example, all alkyl group, they show plus I effect. All alkyl groups. What is this plus I effect? Tendency to repel shared pair of electron away from itself is what we call plus I effect. So methyl group, ethyl group, that means all the alkyl group, they show plus I effect. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखें हम, ये CH3Br या फिर C2H5I, इसमें क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप अपनी शेयर्ड पेयर को बोरॉन के तरफ पुश करेंगे, ब्रोमीन के तरफ पुश करेंगे, because bromine is more electronegative and therefore this methyl group will push its electron pair towards bromine. In the next example, ethyl group will again repel its own shared pair of electron towards iodine and therefore they show plus I effect. So they show plus I effect. Now minus I effect क्या होता है, इसको याद रखने के लिए मैंने कहा था माइनस आई इफेक्ट, और इसका एग्जाम्पल क्या है, हेलोजेंस, बिकॉज हेलोजेंस आर ऑल्सो हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. So tendency to accept electron,
they all are accepting electron in order to complete their octet, ready to accept electron, and shows minus I effect. So इसमें क्या होगा minus I effect? Tendency to attract shared pair of electron towards itself is what? Minus I effect. इसी एग्जाम्पल में प्लस आई इफेक्ट किसने शो किया? प्लस आई इफेक्ट मिथाइल ग्रुप ने प्लस आई इफेक्ट शो किया इथाइल ग्रुप ने। अब ये ब्रोमीन क्या करेगा? ये ब्रोमीन it is attracting the shared pair of electron towards itself. When it is attracting the shared pair of electron towards itself, ये क्या शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट। आयोडीन क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड दैट विल लीड टू द पोलराइजेशन, है ना। ये यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर आ जाएगा, पोलर कैरेक्टर। अब जब ब्रोमीन ने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया तो माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन आने से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इस पे फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज। वैसा ही ये इथाइल और आयोडीन में भी होगा कि आयोडीन में क्या होगा? फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट, और इथाइल पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी हैड सीन, plus I effect and minus I effect. Now today we will take a very important aspect of displacement of electron, and that is resonance effect. Now resonance effect, before going to resonance effect, we should have certain fundamentals to be cleared. Otherwise, it would be difficult to understand this phenomena of resonance. In case of resonance, we are going to have the pi electrons or pi bond. Pi electron or pi bond. अब पहला तो क्वेश्चन यही आएगा, सर ये pi bond क्या चीज हो गया? It is a type of covalent bond. It is a type of covalent bond. तो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, ये केमिकल बॉन्डिंग से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कुछ बेसिक फंडामेंटल यही समझाता हूँ। क्या होता है जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो ये बॉन्ड क्या बनता है? सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो है, इसे हम कहते हैं सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। दिस सिग्मा साइन, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड तो रहता ही है, और एक बनता है पाई कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हमारा पाई कोवेलेंट बॉन्ड, और ये एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसमें दो पाई कोवेलेंट बॉन्ड और एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना। एक बॉन्ड उसमें सिग्मा होता है। तो रेस्ट ऑफ द वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, तो दैट वी नो। तो हम बात कर रहे हैं कि जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो वो हमेशा सिग्मा रहेगा, लेकिन कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वहां पर चांस बनता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों ही क्रिएट होने वाले हैं। सो दीज आर the
various types of covalent bond, sigma bond and sigma covalent bond and pi covalent bond. तो मैं बात कर रहा हूं सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड एंड पाई कोवेलेंट बॉन्ड. अब आएगा सर ये बताओ तो कि ये सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो रहा है और पाई कोवेलेंट बॉन्ड. हमें तो पता है सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड. ये सिग्मा पाई का फंडा कहां से ला लिए? तो ये सिग्मा और पाई कोवेलेंट बॉन्ड का फंडा ये कहां से जनरेट होता है? ये होता है बॉन्ड फॉर्मेशन. बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा है? बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे ये दो कार्बन एटम है, इसके बीच में ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना? बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कार्बन एंड द अदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर कार्बन. तो ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में आ गया. ये पता है हमको. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे ही पास में आ जाएंगे क्या? जैसे अब हमको तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, और जब दो इलेक्ट्रॉन अपने पास में आएंगे तो उसमें बेसिक क्या होना चाहिए? रिपल्शन. अरे भाई, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये C1 का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन C2 का है, ये दोनों पास में कैसे आएंगे? अगर पास में आ गए तो रिपल्शन हो जाएगा, और रिपल्शन होने से बॉन्ड तो नहीं बनता. बॉन्ड कैसे बनता? शेयरिंग से. तो सर फिर ये बताओ ना, ये शेयरिंग क्या हो रहा है? तो ये शेयरिंग के लिए क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, हम उसको अभी सिर्फ ऑर्बिटल्स बोलते हैं ना. ऑर्बिटल्स ये आपने पढ़ा है. ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होता है बॉन्ड. सिर्फ इलेक्ट्रॉन आ गए और शेयर कर लिया, बॉन्ड बन गया, ये तो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? रिपल्शन होगा. अगर इलेक्ट्रॉन दो पास में आ गए, दो लाइक चार्जेस, दो पॉजिटिव लाया तो होगा क्या? नहीं, रिपल्शन. दो नेगेटिव लाए तो क्या होगा? रिपल्शन. तो दो इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा. तो फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? ये अभी हम थोड़ा सा, मैं फंडामेंटल समझा देता हूं. इसकी डिटेल स्टडी हम बॉन्ड फॉर्मेशन में पढ़ेंगे जब हम नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे, तो उसमें है ना, वहां डिटेल पढ़ेंगे. अभी आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है बस वो मैं आपसे शेयर करता हूं. तो बात चल रही थी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है. अब ऑर्बिटल्स होते हैं 4 टाइप के. एक होता है s ऑर्बिटल, एक होता है p ऑर्बिटल, थर्ड होता है d ऑर्बिटल, और फोर्थ होता है f ऑर्बिटल. तो ये s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल्स, they overlap and they create bonding between the combining atoms. इतना याद रखेंगे कि जो बॉन्ड बनता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, और वो ओवरलैपिंग s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, इसमें अभी हम समझने वाले हैं. क्योंकि कार्बन में 2 ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, s और p ऑर्बिटल. क्योंकि कार्बन के टोटल, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? 2 and 4. तो इसमें s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ये दो इन्वॉल्व होते हैं. अब s ऑर्बिटल ये होता है स्फेरिकल इन शेप. स्फेरिकल शेप है इसका, spherical in shape, whereas this p orbital
is dumbbell in shape. डम्बल शेप देखते हैं, अभी हम इसको समझते हैं. स्फेरिकल तो हमें पता है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप है ना, सो इट इज गोइंग टू बी स्फेरिकल इन शेप. और ये s ऑर्बिटल में एटम में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होती है, और सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के आउटसाइड में क्या रोटेट होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. ये आपको पता है. तो मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है कि एटम में 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ये डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन का है, ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में अलग अलग एनर्जी लेवल पे होता है. इतना ध्यान रखें अभी आप. और ऑर्बिटल्स होते हैं 4 टाइप के. हम आज डिस्कस करेंगे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल को. d और f का अभी हमारा डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है. तो s ऑर्बिटल क्या हो गया, स्फेरिकल इन शेप. p ऑर्बिटल क्या हो गया, डम्बेल इन शेप. एंड इन spherical, as we all know, the nucleus is at the center and electron is revolving around the nucleus. So ये हो गया आपका s ऑर्बिटल. अब p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल होता है डम्बेल शेप. और ये डम्बेल शेप जो है, ये एक्सिस में डम्बेल यानी कैसा होता है कि 2 लोब्स होने चाहिए. ये देखिए इस तरह से, there are 2 lobes possible, and these lobes, they are directed towards axis. जैसे हमें पता है कि ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस. तो ये p ऑर्बिटल है तो ये px हो गया. यहाँ पर अगर y एक्सिस पे p ऑर्बिटल आ गया तो py नाम दे दें, और जो z पे आएगा उसे pz बोलेंगे. अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर तो ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया. तो ये है p ऑर्बिटल का शेप. क्या है, डम्बेल शेप. यानी देयर आर 2 लोब्स, और इसकी जो न्यूक्लियस है वो यहाँ होगी सेंटर में. And these p orbitals are directed along 3 axes directed toward 3 axes x, y and z, and thereby they are known as px orbital, py orbital and pz orbital. तो बेटा ये सिर्फ अभी इतना ही समझो. अब ये डम्बेल शेप क्यों है, क्या है, ये सब बाद में हम नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे. तो बात चल रही है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से. ऐसे ही नहीं इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे. इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ही पास में आ गए तो उनके बीच में रिपल्शन होता है. उसको अवॉइड, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो फिर बॉन्ड कैसे बनता है, रिसर्च हुआ उस पे तो पता चला कि यस, इलेक्ट्रॉन तो शेयर होते हैं, लेकिन वो शेयरिंग कब पॉसिबल होती है, जब ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है. और वो 4 टाइप के ऑर्बिटल्स यहाँ पर रिपोर्ट किए गए. एक s ऑर्बिटल होता है जो स्फेरिकल इन शेप है, और p ऑर्बिटल है डम्बेल इन शेप है. d एंड f को हम बाद में पढ़ेंगे. d ऑर्बिटल वैसे बता दूं आपको, ये डबल डम्बेल होता है. एक डम्बेल और उस डम्बेल शेप, और उसी में दूसरा भी तो डबल डम्बेल. और f ऑर्बिटल तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है f ऑर्बिटल का. और वो 3 डायमेंशनल है, यहाँ ड्रॉ भी नहीं कर सकते. एंड right now we are not interested in d and f, we are interested in s and p orbital. तो बेटा ये आ गए s ऑर्बिटल स्फेरिकल, p ऑर्बिटल डम्बेल शेप. अब ये डम्बेल शेप का डायरेक्शन रहेगा. डायरेक्शन क्या होगा, एक x एक्सिस पे जाएगा, एक y एक्सिस पे जाएगा और एक z एक्सिस पे. 3 एक्सिस होती है, ये हमें पता है.
और अकॉर्डिंगली हम उसका नोमेनक्लेचर कर दिए। जो एक्स एक्सिस पे खेलेगा वो px हो जाएगा, जो y एक्सिस पे बिलोंग करेगा वो py हो जाएगा, और जो z एक्सिस पे रिसाइड करेगा उसको हम pz ऑर्बिटल बोलेंगे। तो हमने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को अभी समझ लिया। अब इसमें क्या होता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, अब ये बताते हैं हम आपको, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है, यानी सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, है ना। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, व्हेन ऑर्बिटल्स ओवरलैप, ये वर्ड को ध्यान में रखेंगे आप, ओवरलैप कोएक्सियली, दे ओवरलैप कोएक्सियली और हेड ऑन कोलिजन जो बोलते हैं ना हम लोग, वैसा ही ये ओवरलैप जो हो रहा है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, व्हेन ऑर्बिटल ओवरलैप कोएक्सियली और हेड ऑन, देन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब कोएक्सियल का मतलब क्या है कि सेम एक्सिस पे जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, सेम एक्सिस पे, when they overlap on the same axis they share a common axis and thereby we call them as coaxial overlapping. And this can be seen by taking the example of 2s orbital, 2s orbital। अब ये एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करो आप। हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है कि हाइड्रोजन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, और उससे हम कैसा लिखते हैं 1s1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट एनर्जी लेवल को। तो हाइड्रोजन इज हैविंग जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज हियर। ये हाइड्रोजन एटम, उसका न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन वैसे घूमता रहता है। अब मैं उसको समझाने के लिए एक पोजीशन पे फिक्स कर देता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया। ऐसा ही दूसरा हाइड्रोजन आ गया। अब दूसरे हाइड्रोजन एटम, वो भी स्फेरिकल शेप है, उसका इलेक्ट्रॉन को भी हम शो करने के लिए यहाँ लाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन must be opposite, must be opposite। spin of electron must be opposite। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में जाता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होता है। ये इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व होता है ये सर्कुलर पाथ में, लेकिन ये अपनी जगह पे भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन होता रहता है। इसको समझने के लिए कैसा है कि एक सर्कल, जैसे ये सर्कल में घूम रहा है ना, ये इसका सर्कुलर पाथ हो गया, और ये अपनी उसी सर्कुलर पाथ में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसा वो स्पिन होता रहता है। तो स्पिन भी होता रहेगा और सर्कुलर मोशन भी उसका वैसा चलता रहेगा। इसको हम कहते हैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको याद होगा तो हम अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर एक राइड है। उस राइड को मैंने जो देखा था, वो राइड में एक कप एंड सॉसर का था। तो हम उसमें बैठते हैं और वो कप जो है वो बंद हो जाता है ऐसा प्रोटेक्शन के लिए, और वो ऐसा घूमने लगता है ना, सर्कुलर पाथ में। और फिर बाद में ये कप सॉसर क्या है, ऐसा क्लॉकवाइज भी, यानी सर्कुलर पाथ भी होते जा रहा और वो ऐसा अप एंड डाउन, अप एंड यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व होते जा रहा।
तो ऐसा ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन करता, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, एंड ऑन इट्स सर्कुलर पाथ इटसेल्फ it can spin clockwise or in anti-clockwise. तो फिर दो हाइड्रोजन एटम जिनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, वैसा ही दूसरे हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन अपोजिट है, अब ये जब पास में लाएंगे तो रिपेल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं दोनों की स्पिन अगर सेम कर दूं, दोनों को क्लॉकवाइज या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज अगर मैंने लेके आ गया पास में ओवरलैप करने के लिए, तो क्या होगा? वापस इनके बीच में हमको रिपल्शन दिखेगा। तो हमें क्या करना होगा कि जो स्पिन है वो अपोजिट होना, और स्पिन जब अपोजिट हो जाएगी तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, they will try to have a force, they will have a force of attraction, they will try to attract each other, और जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, when they attract each other, what will happen? They will try to come close, और जब ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो क्या होगा? इनकी ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है ना? ये ओवरलैपिंग हो गई, ये न्यूक्लियस पहले वाले एटम की, ये दूसरे वाले एटम की न्यूक्लियस यहां पर आ जाएगी। So we see this overlapping. सही है? तो ये हाइड्रोजन फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला, क्या होगा? दोनों के इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है। एक देख रहे हैं आप, डाउन एरो दिखा रहे हैं और दूसरा अपवर्ड एरो दिखा रहा है, तो वो रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ओवरलैपिंग। दिख रहा है क्या? क्लियर आपको? अब क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट किए तो अब इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, है ना? ये HH एटम अब काय में कन्वर्ट हो गए H2 मॉलिक्यूल में। सही है? तो इसे कहते हैं हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग। व्हाई कोएक्सियल? क्योंकि सर्कुलर है ना ये, बीइंग द स्फेरिकल, इनकी एक्सिस कोइंसाइड होगी। अब ये जब ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग ऑन सेम एक्सिस, कोएक्सियल मींस सेम एक्सिस, और जब ये सेम एक्सिस पे ओवरलैप करेंगे तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी, एंड दैट मैक्सिमम ओवरलैपिंग विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें पॉसिबल है मैक्सिमम ओवरलैपिंग, and this will create a strong sigma covalent bond। तो अब हमने क्या समझा कि जब कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में हम एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं तो वो हमेशा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा, और वो बनेगा कैसे? बाय overlapping of atomic orbital in a coaxial manner or in a head-on manner। तो अभी मैंने आपको दो s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये कौन से ऑर्बिटल में है? s ऑर्बिटल में, और दूसरा वाला भी s ऑर्बिटल में है। तो ओवरलैप करके ये हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज गोइंग टू बी अ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक और वर्ड यूज किया मैंने, हेड ऑन। हेड ऑन कब होता है? कि जब दो p ऑर्बिटल, है ना,
when two p ऑर्बिटल, और वो भी कौन से वाले, px समझ लीजिए आप, ये एक px ऑर्बिटल है, ये दूसरा px ऑर्बिटल है, ये भी अपने एक्सिस पे है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन है क्लॉकवाइज, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन है एंटी क्लॉकवाइज। अब x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है, ऑर्बिटल सिर्फ x पे अवेलेबल है। तो जब x पे अवेलेबल है और दोनों इलेक्ट्रॉन px ऑर्बिटल अनपेयर्ड है और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है, तो ये क्या करेंगे, अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों के जो लोब्स है ये एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। तो ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करने वाले हैं। व्हेन दे ओवरलैप, ये देखिए ओवरलैपिंग होगी यहां पर, एंड दिस ओवरलैपिंग अब थोड़ा छोटा सा हो रहा है ये डायग्राम, तो मैं यहाँ पर उसको थोड़ा ब्रॉड बना देता हूँ ओवरलैपिंग को समझाने के लिए। ये देखिए ये ऑर्बिटल, ये लोब, दोनों के ओवरलैप हो गए। अब ये कोएक्सियल ही हो गया ना, इसका px और इसका px कोएक्सियल भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड ऑन। अब ये दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। अब ये लोब ओवरलैप हो गए तो दूसरे लोब में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसीलिए ये जो लोब है ये यहाँ पर श्रिंक हो जाता। ये लोब, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ओवरलैप हो गए, ओवरलैप यहाँ पर आ गए, इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पर अवेलेबल है, इन द कॉमन रीजन ऑफ ओवरलैप। वो इस लोब में जाएगा क्या, अब नहीं, जब वो जाएगा नहीं तो वो लोब अपने आप क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, एंड व्हेन इट गेट श्रिंक इट बिकम स्मॉलर। तो ये श्रिंक होने से हम जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हो गया। तो अब ये बना फिर से सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि कोएक्सियल है या हेड ऑन ओवरलैपिंग है। तो अभी हमने समझा कि हाउ डज अ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। How does it is formed? It is formed by coaxial or head-on overlapping of atomic orbitals containing unpaired electron with opposite spin. Correct है ना? Unpaired electron with opposite spin on orbitals, they overlap and create a sigma bond. तो ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, ये भी कोएक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग px ऑर्बिटल की। दिस विल क्रिएट अ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड हैज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, है ना। जैसे हम बात करें कि ये दो ऑर्बिटल्स है, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिट स्पिन है, तो ये ओवरलैप शुरू करेंगे। अब ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। अभी तो आप इसको इतना ही समझो, है ना। मोर द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग मोर स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। कम रहेगा तो क्या होगा, बॉन्ड टूटने के चांस है। ये देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई, और ओवरलैपिंग ज्यादा होने से ये क्या हो गया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि उसमें रीजन ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम है, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग किसके कारण पॉसिबल है, कोएक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग के कारण वो पॉसिबल है। अब हम आपको समझाते हैं पाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। पाई कोवेलेंट बॉन्ड,
हाउ डज अ पाई कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। अभी आपको ऑर्बिटल समझ गया, आपको ओवरलैपिंग समझ गया, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन ये भी फंडा हो गया। तो पाई कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज और lateral overlapping of p orbitals, और p orbitals में स्पेशली कौन से ऑर्बिटल रहेंगे, py एंड pz ऑर्बिटल्स। आपको अभी हमने बताया था px, py और pz, है ना। तो px कभी भी रहेंगे तो वो हेड ऑन कर जाएंगे, क्योंकि दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। तो वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी। लेकिन जब py और pz ये ऑर्बिटल आएंगे तब ओवरलैपिंग कैसी होगी, साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग होगी। साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग के लिए चलो समझते हैं हम, यहाँ पर इसे इरेज करते हैं, नीड सम स्पेस। ओके डियर, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड को समझते हैं। अब जैसे पी वाई ऑर्बिटल लेते हैं, तो पी वाई ऑर्बिटल, वाई एक्सिस इज a axis which is there perpendicular, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल होगी और एक ये वर्टिकल होगी। वर्टिकल वाला ऑर्बिटल क्या हो गया, पी वाई। अब इसकी पी एक्स और पी जेड एक्सिस तो वैसे ही है। अब ये एक और बना लेते हैं हम ऑर्बिटल, कौन सा कंसीडर करना है, फिर से पी वाई कंसीडर करते हैं। तो ये पी वाई आ गया यहाँ पर, पी एक्स पी जेड अपनी जगह पे है। तो ये पी वाई ऑर्बिटल, ये पी वाई ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेंगे, ये डम्बल शेप में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं, है ना। दिख रहा है सभी को पाथवे, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ डम्बेल शेप पी ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। तो कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास भी आएगा और एक वक्त आएगा कि वो न्यूक्लियस से दूर भी जा रहा है। अब हम क्या देखेंगे कि ये पी वाई में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये पी वाई में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दोनों की स्पिन अपोजिट हो गई। अब स्पिन अपोजिट होने से क्या होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। व्हेन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझेंगे आप इसको अभी कि व्हाट हैपेंस व्हेन टू सच पी ऑर्बिटल which are having unpaired electron। तो ये p ऑर्बिटल बना लिया मैंने। अब परफेक्ट डम्बल शेप तो आता नहीं है, फिर भी यू मस्ट बी गेटिंग इट। तो ये एक पी वाई ऑर्बिटल, ये दूसरा पी वाई ऑर्बिटल, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। व्हाई दे आर अट्रैक्टिंग, सिंस दे हैव अपोजिट स्पिन। तो ये एक पी ऑर्बिटल हो गया। तो जैसे अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों साइड वाइज आएंगे। अब अगर ये साइड वाइज आएंगे तो इस तरह से ओवरलैपिंग होगा। देखो तो जी, हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है, हो गया साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिसको हम लैटरल ओवरलैपिंग कहेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, ये देखो दो जगह पे ओवरलैपिंग पॉसिबल हो गई, है ना। एट टू प्लेसेस, ये जो डार्क किया मैंने, ये प्लेस पे ओवरलैपिंग हो गई। मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस above the nucleus and below the nucleus तो यहाँ पर है, तो इधर ओवरलैपिंग होगी, इधर भी ओवरलैपिंग होगी।
but this overlapping is not maximum overlapping. Why it is not a maximum overlapping? जबकि यहां पर तो हमको दो जगह पे ओवरलैपिंग दिख रही है, दो जगह पे ओवरलैपिंग, और इसमें तो एक ही जगह पे ओवरलैपिंग। फिर भी सर आपने लिख दिया मैक्सिमम ओवरलैपिंग, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग होने से बॉन्ड स्ट्रांग होता है। यहाँ तो दो जगह ओवरलैपिंग हो रही है, ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ ओवरलैपिंग मैक्सिमम पॉसिबल ही नहीं है। देखिए तो, सोचिए तो जरा, क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये दो ऑर्बिटल को पास में लाएंगे बेटा हम लोग, तो क्या हो जाएगा कि इसके दोनों के ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ये भी पास में आने लगेंगे, और जब ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पास में आ गए, लाइक चार्जेस विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर, ज्यादा पास में लाया कि रिपल्शन हो जाएगा। एक लिमिट तक के रखा इज ओके, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा क्लोज ला लिए तो ये दोनों रिपेल करेंगे, इसीलिए ओवरलैपिंग is not maximum. It is there, overlapping is there, but not to the maximum extent as we see in sigma covalent bond formation. तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग क्यों नहीं हो रही है? फिर से आप समझेंगे उसको, क्योंकि दोनों जैसे इसको आपने क्लोज लाया है ना, ये और इसको क्लोज में लाया, तो इसकी जो न्यूक्लियस है वो भी पास में आ जाएंगी, और न्यूक्लियस पास में आ गए तो रिपेल होगा। यहाँ न्यूक्लियस पास में आती है, लेकिन न्यूक्लियस के बीच में क्या दिखता है अपने को? इलेक्ट्रॉन। तो उसके बीच में तो एक वॉल आ गई ना इलेक्ट्रॉन की, तो दोनों न्यूक्लियस रिपेल नहीं करते। यहाँ पर the two nuclei, they are not repelling each other because in between there is a density of electron. दो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आ गए तो ये न्यूक्लियस रिपेल नहीं करती। लेकिन यहां पर आ रहे क्या इलेक्ट्रॉन बीच में? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के ऊपर और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नीचे। इसीलिए जो ओवरलैपिंग होती है तो ये न्यूक्लियस भी पास में आ जाते हैं, और जब न्यूक्लियस पास में आ गए तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते। तो आपने ऐसा किया, लाए एक दूसरे के पास, ओके, इतना पॉसिबल है, और बढ़ा देंगे तो रिपल्शन हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग इज नॉट मैक्सिमम, इज नॉट मैक्सिमम, है ना? तो ओवरलैपिंग इज नॉट मैक्सिमम, हेंस इट इज अ वीक बॉन्ड, है ना? मुझे ये पढ़ाना था, ये अपने काम का है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड जो है वो वीक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ओवरलैप करने के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करेंगे, ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, लेकिन ओवरलैपिंग इज नॉट मैक्सिमम, एंड देयरफॉर pi covalent bond is a weak covalent bond. तो बात चल रही थी हमारी, यानी देखिए मुझे समझाना क्या है रेजोनेंस, लेकिन उसके पहले ये लॉजिक भी हमारे लिए जरूरी था। तो ये फंडामेंटल क्लियर हुआ। क्या याद रखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वन इज अ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल और साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है? पाई कोवेलेंट बॉन्ड, which is a weak covalent bond, and it is formed by sidewise or lateral overlapping of p orbital, especially when py and pz are involved. अब pz अगर होगा तो वो ये pz ऑर्बिटल है ना?
हम pz ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अगर शो करना है तो ये pz ऑर्बिटल, जब pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे ये भी साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, है ना। साइड वाइज ओवरलैप किया तो फिर से रीजन ऑफ ओवरलैप अबव एंड बिलो द न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग हो रही है, और वो ओवरलैपिंग फिर से कैसी रहेगी, नॉट मैक्सिमम। और मैक्सिमम ओवरलैपिंग पीजेड में अगर नहीं है तो क्या होगा, फिर वो वीक बॉन्ड हो जाएगा। तो वीक कोवेलेंट बॉन्ड इज पाई एंड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इज सिग्मा। ठीक है, तो इसको हमने आज समझा कि सिग्मा एंड पाई कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑलवेज अवेलेबल व्हेनेवर वी सी मल्टीपल बॉन्ड्स। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे तो वहां पर पाई बॉन्ड का एग्जिस्टेंस असेंशियल है ना। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बन सकता है लेकिन पाई बॉन्ड कभी सिंगल नहीं होगा। पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बनेगा। तो मैं फिर से लिख रहा हूं जहां से हमने शुरू किया था। ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, तो बेटा ये क्या रहेगा, हमेशा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट इज अ स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। और जब कभी डबल बॉन्ड आएगा तो उसमें एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा, यानी पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा के साथ ही बनेगा, इंडिविजुअल नहीं बनता। और ये पाई बॉन्ड जो है ये क्या है, वीक कोवेलेंट बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड भी जब रहेगा तो वहां भी सिग्मा और पाई के चांस रहेंगे। तो सिग्मा तो रहेगा हमेशा लेकिन इसमें ये पाई बॉन्ड। अब जैसे ये C डबल बॉन्ड O, इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। नाइट्रोजन में भी हमको पाई बॉन्ड मिलेंगे और सिग्मा बॉन्ड मिलने वाले हैं। तो वी सी दिस डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड एटम्स हैव two types of covalent bond, one sigma covalent bond and one pi covalent bond. तो बच्चे लोगों, आज आपने पढ़ा there is a formation of covalent bond by overlapping of atomic orbital. सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं वो ऑर्बिटल एक दूसरे के क्लोज आते हैं, ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और बॉन्ड फॉर्मेशन दो टाइप से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड जो स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड है, और दूसरा पॉसिबल होता है पाई कोवेलेंट बॉन्ड, वो वीक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सही है, हमको पढ़ना है रेजोनेंस इफेक्ट, और रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ने के लिए हमें पहले एक पॉइंट को डिस्कस करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड अगर ये रहेगा तो फिर रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो मुझे ये पाई बॉन्ड आपको बताना था ना, तो उसके लिए ये हमने इतनी देर तक के लेक्चर अभी आपको समझा दिया एकदम बढ़िया तरीके से। आई मस्ट से कि ये आपको याद रहना ही चाहिए अभी कि सिग्मा बॉन्ड क्या है और पाई कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो अब हमको रेजोनेंस के तरफ जाने के लिए ये पहले ये इंफॉर्मेशन लगने वाली है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड से मतलब क्या है, whenever there is alternate double and single bond, alternate double and single covalent bond, then that is what we call as conjugated system of pi bond. तो ये डबल बॉन्ड है
आपको अब समझ गया कि एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। जहां भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वहां सिर्फ सिग्मा होगा। फिर से ये डबल बॉन्ड आ गया तो एक पाई रहेगा, एक सिग्मा होगा। सिंगल बॉन्ड आ गया तो अब यहाँ क्या रहेगा, फिर से सिग्मा बॉन्ड होगा। इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड। तो जब भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व रहेंगे तब रेजोनेंस इफेक्ट पॉसिबल होता है ना। अब जैसे ये 5 कार्बन, अब देखो यहां पर ये एक एग्जांपल लिखा, कॉन्जुगेटेड, समझा आपको? कॉन्जुगेशन मीन्स ऑल्टरनेट। अब एग्जैक्टली ऑल्टरनेट तो ये एग्जांपल में दिख रहा है हमको, लेकिन ये वाला एग्जांपल देखो, 1,4 डाइन पेंट 1,4 डाइन 1 2 3 4 5 फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के डबल बॉन्ड है। ये 1 2 3 4 5 ये भी पेंट है, ये भी डाइन है। नंबर बता दो मुझे, डाइन में क्या नंबर आता है? तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में है, थर्ड और फोर्थ के बीच में है, तो क्या लिखेंगे? पेंट 1,3 डाइन, पेंट 1,3 डाइन। और ये क्या बना? पेंट 1,4 डाइन। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी होती है कि ये भी कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल बॉन्ड, तो ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि यहां से ये इधर जा सकता है, यहां का इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बचा, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। अब उसी में हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट देखो, ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है ना। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलैरिटी। अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण पोलैरिटी आती है तो वो हमें दो इफेक्ट शो करता है, एक इंडक्टिव इफेक्ट और एक रेजोनेंस इफेक्ट। और जब पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वैकेंट पी ऑर्बिटल के कारण पोलैरिटी आएगी, उसको हम कहेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। मैं इसको फिर से डिस्कस करूंगा, हमारा ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसको यहाँ मैं ब्रेक देता हूँ और दूसरा लेक्चर इमीडिएट आप देखेंगे, उसमें मैं पूरा रेजोनेंस इफेक्ट एक्सप्लेन करूँगा। तो रेजोनेंस के लिए हमें क्या चाहिए? कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिटल होना चाहिए जो डम्बेल शेप रहता है, उसके वजह से रेजोनेंस पॉसिबल है। अभी मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आई होप बच्चे लोग आपको समझा होगा। थैंक यू सो मच।